Good morning, class. Today I will discuss long answer type question of yesterday poem. See, yesterday we have done the Robert Frost. See how means if you see every character of the poem is not irrelevant, it's relevant. Okay, like even the hemlock tree, see, crow, so even the snow also. So all it is symbolical poem. Okay. Now one long answer type question we will do. Okay. So now a simple movement proves to be very significant. See, simple movement was there that the snow has fallen on the crow and the crow has removed it. It was a very simple movement. Now it has become very significant. How it has become very significant and saves the rest of the day. And the rest of the day of the writer it has saved. See how? Now we have to explain on the basis of the dust of the snow. See, first of all, what had happened? What had happened, beta? See, a poet was standing, okay, under the hemlock tree, and on the hemlock tree, crow was also there, sitting on its branch, and the snow was falling. When the snow was falling, then what has happened? It has fallen on the crow also, and crow has removed the snow by shaking its body. This event has happened, and see how this event has changed the writer's life. Now see, one day the poet was in a very sad mood. Now the poet heart was filled with lot of sadness. He was very in sad mood. Okay. Sorrow and dejection had settled on his heart. Sorrow एंड डिजेक्शन मतलब हर किसी से, एक तो सॉरो होता है आपका दुख और डिजेक्शन होती है हर किसी से कि पाना कि नहीं ये बिल्कुल गलत है गलत है गलत है, मतलब हर कोई जो आपको गलत कह रहा है, ठीक है, उससे वो कह सकते हो, ये नफ़रत कह सकते हो, ठीक है, सेटल्ड उसके दिल में भर चुकी थी, ठीक है. He tells us that he was standing beneath a hemlock tree. यहाँ पे beneath वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि ये बेटा जो उसकी पोजीशन दिखाई गई है, हम उसकी पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं. That's why यहाँ पे अंडर की जगह beneath यूज़ किया हुआ है. Okay? Now see. So he was standing beneath a hemlock tree. Now, a crow shook off the dust of the snow that fell on him. Now, he was standing and the snow was falling और crow के ऊपर वो snow जो है वो गिर गई थी, तो crow ने अपनी body shake की to lift, you can say, to remove the dust, okay, which has fallen on him. When the dust fell on the poet, a sudden change came in his mood. अब जैसे ही डस्ट वो पोएट पे गिरी, जो क्रो ने रिमूव की थी अपनी बॉडी से, जब वो क्रो पे गिरी तो उसको एकदम से उसका मूड चेंज हो गया. सी उसने उसी चीज़ से कितनी अच्छी लर्निंग ली कि जैसे हम अपने बॉडी पे जो डस्ट गिरता है या फर्नीचर पे जो डस्ट होता है आप उसे रिमूव कर देते हो, हटा देते हो, वैसे ही हमें अपने मन से सारी कड़वी यादें जो हैं वो भुला देनी चाहिए. ओके. सो a crow and a sudden change came in his mood. Now this has changed
द राइटर्स मूड. It ended all the regret that had filled his mind. जितनी भी नफरत, जितना भी गुस्सा, जितनी भी कड़वी यादें उसके मन में भरी हुई थी, वो सब चीज़ उसने दूर कर दी. Does it save his day from any further sadness? तो ताकि यही इसी इंसिडेंट से उसकी बाकी सारी जो कह दो बाकी सारा डे बच गया कड़वी यादों से, कि उसने उससे सीख लिया कि अगर कुछ कड़वी यादें हैं तो उन्हें झड़का दो, लेट इट गो. ओके. द पोएट हैज यूज्ड द हेमलॉक ट्री, द क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो एंड द क्रॉस शेकिंग ऑफ दिस डस्ट फ्रॉम हिज विंग्स एज सिंबल्स ओनली. देखो पोएट ने हेमलॉक ट्री, क्रो, ओके, और डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का जो गिरे थे ऊपर से, और क्रो की शेकिंग बॉडी को, डस्ट, ठीक है, जो उसके विंग्स पे गिरा हुआ है, और जो क्रो की जो शेकिंग ऑफ है, ये सब एज अ सिंबल यूज़ किए हैं. कैसे यूज़ किए? एज अ सिंबल. फ्रॉम हिज विंग्स एज सिंबल्स ओनली. द हेमलॉक नाउ द हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री. जो हेमलॉक ट्री है बेटा वो पॉइजनस ट्री है. इट हैज़ बीन यूज्ड हेयर एज अ सिंबल ऑफ द पोएट्स सैड माइंड. जो हेमलॉक ट्री है वो कैसे यूज़ किया हुआ है? एक पोएट के सैड माइंड पे. देन डैट कैन बी नो लेस देन अ पॉइजन फॉर द बॉडी. देखो जो हमारा सैड माइंड है वो वाकई में हमारे लिए पॉइजन का वर्क करता है. हाउ इट वर्क एज अ पॉइजन? सी बेटा, अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है एंड फिल्ड विद ग्रेट सैडनेस होता है, तो हमारे वर्क पे भी इफेक्ट होता है. हमारा जो वर्क होगा वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा और आप इतना अच्छे से उसे अटेम्प्ट नहीं करोगे. ये डिफरेंस होता है. सो वो एक पॉइजन है बॉडी के लिए. द क्रो इज़ ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ इल वुमेन. अब जो क्रो है वो भी किस चीज़ का मतलब किस चीज़ का आप कह सकते हो सिंबल होता है? वो सिंबल होता है बुराई का, नेगेटिव पावर का, नेगेटिविटी का, है ना. सो द पोएट हैज़ यूज्ड इट एज सिंबल ऑफ द सैड थॉट्स दैट हैड सेटल्ड ऑन हिज माइंड. और क्रो ने पोएट ने क्रो को कैसे सिंबल लिया है? ऐसा सिंबल लिया है जो सैड थॉट्स हैं जो उसके माइंड में हैं. ठीक है. Now the poet has used it as symbol of. Now just as the crow had settled on his hemlock tree, the dust of snow had settled on the crow is a symbol of inertia that the poet's sad thoughts have brought. देखो बेटा, जो क्रो जो हेमलॉक ट्री पे है उस पे जो स्नो गिरती है उस चीज़ को पोएट ने क्या लिया है? To that also poet has taken एज अ सिंबल ऑफ जो इनर बॉडी से जो है ना कनेक्टेड, उसको एज अ लिया है.
Now see, it is used as a symbol, जो एक सिंबल ऑफ इनर्शिया, मतलब जो इनर की बॉडी, जैसे हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, दैट द पोएट सेड थॉट्स हैव ब्रॉट अबाउट इन हिम, जो उस पोएट के सेड थॉट्स ने उसके अंदर ला दिया, कि पोएट कुछ भी नहीं करता, ठीक है, वो मतलब इंटरनली बहुत ज़्यादा हार्म हो चुका है अपने सैड थॉट्स की वजह से। एंड द क्रोज शेकिंग ऑफ दिस डस्ट, और जब क्रो ने इस डस्ट को शेक ऑफ किया, अपनी बॉडी से हटा दिया, तो उसे भी एज अ सिंबल यूज़ किया है कि हमें बुरी यादें जो है हटा देनी चाहिए, है ना। सी, एज अ सिंबल ऑफ न्यू अवेकनिंग, जो हमें पॉजिटिविटी है और जो नई यादें वो लानी चाहिए। डैट केम इन पोएट्स माइंड, जो पोएट के माइंड में उस आई। सो इट एंडेड ऑल हिज रिग्रेट एंड सेव हिज माइंड फ्रॉम एनी फर्दर रिजेक्शन। तो जितनी भी नफरत, जितनी भी कड़वी यादें थी, जितनी भी नफरत थी, वो सारी ख़त्म होके और नई भरी फ्रेश एयर जो आप फील कर सकते हो, वो पॉजिटिविटी, फ्रेश आइडियाज़ वो लाइए, ठीक है। तो उसका एक तरीके से मन खाली था इन सब चीज़ों से। अब नाउ सी द नेक्स्ट पोम, फायर एंड आइस। यस, ये भी, दिस इज ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड नाउ सी हेयर, सी बेटा, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जितनी पोम्स है ना बेटा, वो सिंबल बेस्ड होती है, सिम्बॉलिकल ज़्यादा होती है, क्योंकि बिकॉज ही इज़ टेकिंग वन ऑफ एनी सिम्बल्स। श्योर, आप उनके पोएम्स देखोगे तो उनके वर्डिंग्स जो होते हैं वो बहुत कुछ कहते हैं, इंटरनल मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे आपकी ये पोम है, नाउ वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस पोम। नाउ इसके अंदर देखो, इस पोम के अंदर उसने आइस और फायर, जो दोनों अपोजिट है, वो उसने यूज़ किया एज अ मीडियम। ओके, सो द पोम सो दिस पोम इज अ मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी, उसके ऊपर बेस्ड है ये पोम। Now, according to the Bible, the world will end by fire. अब बाइबल ये कहती है, मतलब कि जो आपकी बाइबल, जो एक होली बुक है, वो ये कहती है कि ये वर्ल्ड एंड होगा, लेकिन किससे होगा? आग से, ओके, फायर। बट द मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव दैट इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर ऑल द लाइफ ऑन दिस अर्थ शैल बी फ्रोजन टू डेथ। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि आपस में सभी कंट्रीज़ में वर्ल्ड वॉर होगा, ठीक है, और ये जो ज़िंदगी है जो इसमें है वो एक फ्रोज़न टू डेथ, डेट मीन्स जम जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कैसे? बिल्कुल सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, फ्रोज़न हो जाएंगे, जम जाएंगे, ठीक है। तो एक ने जला के और एक ने एकदम से फ्रोज करके। द पोएट हैज़ यूज्ड फायर एंड आइस एज द टू सिम्बल्स इन द पोम। इन दिस पोम आपके टू सिम्बल्स यूज़ किए हुए हैं, एक तो फायर और एक आइस। So through this poem, see, one is saying that the world will end by ice, and one is saying that the world will end by war, and then the life will freeze, ठीक है। So इसमें जो फायर है बेटा, वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? सी, फायर डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, कि हमारे पास हमारी जो डिज़ायर होगी वो अनलिमिटेड होगी। दैट मीन्स हमारी चाहतें अनलिमिटेड होगी, कि अगर वो उसके पास है तो क्यों है, वो हमारे पास भी होना चाहिए। या और लेने की इच्छा, कि नहीं हमें और बढ़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास कुछ होता है तो हम यही देखते हैं कि नहीं हमारे पास तो इतना है, अभी और चाहिए, है ना। जैसे आप मनी वाइज देख सकते हो
कि अगर आपकी मान लीजिए सैलरी अगर आपकी 5,000 है तो आप नेचुरल है आगे देखोगे कि मेरी 10,000 क्यों नहीं है। तो हमारी जो डिज़ायर है वो अनलिमिटेड है। सेकंड है आइस। आइस होती है हेट्रेड, कि आपस में जो मैन काइंड में मतलब आपस में जो मैन ह्यूमन बीइंग है वो एक दूसरे को देख के बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। ओके, सो डिज़ायर एंड हेट आर टू डेडली सिंस ऑफ मैनकाइंड। तो ये जो हमारी जो लाइफ कम टू डेथ होगी वो किस रीज़न से होगी? एक तो डिज़ायर एंड नेक्स्ट इज हेट, नफरत। ठीक है, एक तो इच्छा कि आगे और आगे और आगे और दूसरा नफरत। ठीक है, ये दोनों बहुत बड़े मैनकाइंड के वेपन होंगे। दे आर एज पावरफुल वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एज फायर एंड आइस कैन बी। ये डिज़ायर और हेट्रेड ये दोनों पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं, जैसे एक फायर और एक आइस ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, जो तबाही ला सकते हैं फायर और आइस वैसे ही वो ला सकते हैं। नाउ स्पीक द पोम विद मी। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Now देखो बेटा, इसके अंदर एंडिंग वर्ड्स देखना बेटा, फायर, डिज़ायर एंड फायर, ये 3 राइमिंग वर्ड्स हैं। ओके, देन आइस इज विथ ट्वाइस। ओके, नाउ हेट, ग्रेट, आइस इज विथ ट्वाइस आइस एंड सफिस। ओके, देन इट्स हेट एंड ग्रेट। ओके, सो नाउ सी नाउ एंड इन फायर डेट मीन्स पेरिश बिकॉज ऑफ अ बिग फायर, कि आपस में बहुत ज़्यादा आग, बड़ी वाली आग जिसे कहते हैं ना, उसको कहा गया है। जैसे आप सन की कह सकते हो, एट अ वन, जो 1 मिनट में बिलियंस ऑफ गैसेस बर्न हो रही होती हैं, वो वाली आग उस टाइप की कही गई है। टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो टेस्टेड ऑफ डिज़ायर डेट मीन्स जो कह सकते हो ना जलन, घृणा, ये सब चीज़ें आ गई हैं आपकी, कि नहीं डिज़ायर करो लेकिन ये नहीं होता बेटा कि हम दूसरे से जल के और फिर आगे, और ये चीज़ गलत हो जाती है। तो वहाँ पे ये वाली वो वाली कहा गया है। एक्सपीरियंस्ड अबाउट ग्रीड, जो लालचीपन है वो आ जाए। एंड मटेरियल डिज़ायर्स, मटेरियल्स डिज़ायर, डिज़ायर अपने खुद के आगे बढ़ने के नहीं बल्कि मटेरियल्स की लग्जरियस गुड। सो सफिस, उसे सफिशिएंट को कहा गया है। नाउ सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये दुनिया है ये आग से ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ बिलीव्ड दैट द कॉमन फ्रॉम द बाइबल। देखो बेटा, बाइबल में ये चीज़ लिखी है कि जो वर्ल्ड है वो आग से ख़त्म हो जाएगा। इन द बाइबल देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द होल वर्ल्ड बाय फायर। बाइबल में ही डिस्क्रिप्शन है कि जो होल वर्ल्ड है ये फायर से एंड हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड सब बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। और कुछ जो साइंटिस्ट है वो ये चीज़ मानते हैं कि जो वर्ल्ड है ये आइस से एंड हो जाएगा। आइस से कैसे एंड होगा? कि पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर चलेगा, ठीक है, और उन्हीं वॉर की वजह से जो लाइफ है वो फ्रीज हो जाएगी। दिस बिलीफ हैज़ बीन गिवन टू अस by scientists. The modern scientists maintain that a long winter will set if a nuclear war breaks off. A modern scientist ये मानते हैं कि एक
नाउ मॉडर्न जो साइंटिस्ट है दे मेंटेन डेट अ लॉन्ग विंटर विल सेट इन इफ अ न्यूक्लियर वॉर ब्रेक्स, कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है तो एक बहुत ही ठंडी लंबी ठंडी वाली आएगी सर्दी। ओके, और वो जो लाइफ है वो फ्रीज हो जाएगी प्लैनेट की। ऑन द बेसिस ऑफ हिज टेस्ट ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स द ना देखो, तो ये बाइबल पॉइंट ऑफ व्यू और साइंटिस्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है। दोनों ने एक ही चीज़ प्रूव की है कि डिज़ायर और हेट बहुत डेडली वेपन्स है। ओके, सो बेटा नाउ सी, then the poet says that hate can be another weapon of destructions। अब पोएट फिर ये कहता है जो हेट है वो दूसरा वेपन है डिस्ट्रक्शन का। ही हैज़ फाउंड सो मच हेट इन मैनकाइंड, उसने मैनकाइंड में बहुत सारी नफरत भी देखी है। डैट इट वुड सफिस फॉर द एंड ऑफ द होल वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया उसमें ख़त्म हो सकती है। द पोएट सेज डैट इफ द वर्ल्ड वर to perish twice, hatred or ice could be as powerful weapons of destruction as fire or desire could be। तो देखो बेटा वो कह रहा है कि हेट्रेड और डिज़ायर अगर हम ये देखें तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है जो डिस्ट्रक्शन पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, जैसे एक आग है ना, और एक आइस ख़त्म कर सकते हैं। सो हेटेड मेक्स अ मैन ड्राई इमोशनली, जो नफ़रत होती है ना वो आदमी को रूखा बना देती है बेटा अंदर से, इमोशनली से। ही बिकम्स कोल्ड स्पिरिचुअली, और वो बहुत ठंडा पड़ जाता है, उसमें ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग नहीं होती। ही बिकम्स कोल्ड स्पिरिचुअली मतलब जो ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग है ना वो ख़त्म हो जाती है बेटा। ही बिकम्स बैरन मेंटली, और वो एक खाली दिमाग हो जाता है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है। एंड ही लूसेस द पावर टू जज राइटली, और क्या सही है क्या गलत ये पावर वो खो बैठता है। सो द पोएट इक्वेट्स हेट्रेड विद आइस, तो पोएट क्या करता है हेट्रेड को किससे बराबरी कर रहा है, आइस से। ओके, क्योंकि आइस से क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो दिमाग है बिल्कुल खाली हो जाता है, ठीक है, और हमारे अंदर ह्यूमैनिटी वाली ख़त्म हो जाती है फीलिंग। ओके, सो बोथ हेट्रेड एंड आइस हैव अ फ्रीजिंग इफेक्ट, दोनों में क्या है, फ्रीजिंग इफेक्ट है। वन किल्स अ मैन फिजिकली एंड द अदर स्पिरिचुअली, एक तो फिजिकली ख़त्म कर देता है और एक स्पिरिचुअली अंदर से। ओके, so I hope the poem is clear to you। So tomorrow we will discuss its abstract also and question answer also। Again I am telling tomorrow we will discuss its extract also and question answer also। Today a very simple poem we have done, but the meaning of it is very nice। See कि हम जो ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग है उसको कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए। ओके, अदरवाइज क्या होगी, लाइफ जो होगी वो एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो आई होप द पोम इज़ क्लियर टू यू कि इस पोम के अंदर टू कौन से बेटा यूज़ किए गए हैं सिंबल्स, वन इज़ आइस एंड वन इज़ फायर। जो आइस है वो किसका सिंबल है बेटा,
हेट्रेड का, और जो फायर है वो किसका सिंबल है, डिजायर का, कि बोथ दे आर डेडली वेपन्स जो एक लाइफ को एंड कर सकते हैं, ओके, वर्ल्ड को एंड पे ला सकते हैं, ओके।